Good morning, children. So now we are starting our second term. We are starting with lecture number 1, chapter 5 of history. That is national movements towards independence. Now see, in chapter 4, right? In chapter 4, you are studying up to year 1926. That means 1923 and 26. After, you can say, when this movement which we call non-cooperation movement failed, there was split in Congress that was called National Party. And because of this split, party itself was divided into two parts. Those who supported Gandhiji remained in Congress party because we have studied on GR. Gandhiji suspended non-cooperation movement. The party who supported Gandhiji remained as it is. And the party who opposed Gandhi's decision, they made the Alag Party. That was called Swaraj Party, headed by Chittaranjan Das and Motilal Nehru. Acha, the goal was common. The target was common. But due to ideological differences, they could not sustain. Now, what happens? We'll see. All this thing went into a row. All this thing went to a column. And Swaraj Party contested the election. They won some seats in their local provinces. But at the death of Chittaranjan Das, that is called 1926, once again, party lost their favorable leader. And because of losing the able leadership, party lost momentum. And losing the momentum, once again, they were merged with Congress party. Right? So what goes? This was the story up to 1926. Now, we will study the events which took place after 1926. बराबर है? तो ये हम ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे. अच्छा, अभी एक आप करेक्शन करने का है जो आपको दिया गया है. पहला टॉपिक है हमारा साइमन कमीशन. साइमन कमीशन साइमन कमीशन उसका डेट है 1927. बराबर है? अच्छा, 1927. तो ये जो है आपकी टेक्स्ट बुक में गलत दिया है. टेक्स्ट बुक में लिखा है 1942. बराबर है? 1942 is the textbook language. You cancel that and you write 1927. Right? So once again, the freedom movement started, and we will start with new section that is called 1927. Acha, in this lesson, let me say, we are supposed to study about 1927 to 1947, मतलब आजादी तक. 27 के बाद जो जो घटनाएं हुई हमारी आजादी के लिए, 47 तक वो सारी घटनाएं हम ये लेक्चर में पढ़ेंगे. ये लेक्चर में हम सीखेंगे. आया समझ में? Any doubt? So let us see. As it happened कि भाई फ्रीडम मूवमेंट सबसाइडेड. 26 तक कुछ नहीं था हिलचाल. फिर 1927 में एक नया मोड़ आया जिसको हम बोलते हैं साइमन कमीशन. राइट?
उसको क्या बोलते हैं? साइमन कमीशन। उसमें क्या है? तो लेट अस सी पेज नंबर 31 ऑफ टेक्स्ट बुक। Montfort amended declaration that commission should be sent to India after 10 years to examine the effect and operation of constitutional reforms and to suggest more reforms in India. But 2 years later, government appointed Simon Commission. So what happens? Actually, as per old, you can say, talk, right? As per old talk, topic number 1, Montfort, right? Montfort, Chelmsford. Right? CHE, स्पेलिंग गलत है, CHEL MS फॉर्ड, बराबर। Montfort declared the commission should be sent to India, बराबर है, to India after 10 years to study and examine बराबर है, to study and examine the effects and operations to study and examine the effects and operations of constitutional reforms right? And suggest more reforms and suggest more reforms for India but 2 years later government appointed Simon Commission. बराबर है। तो ये साइमन कमीशन का बेस है। क्यों साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया था? बेसिकली हमारे साथ खिलवाड़ी हुआ था। पहले ब्रिटिश सरकार ने हमारे लिए कुछ सोचा था, जनरल मॉन्टफोर्ट चेम्सफोर्ड की जगह उसने सुझाव दिया था कि हम पूरा हिंदुस्तान का जायजा लेंगे, हम स्टडी करेंगे और कौन से रिफॉर्म्स अभी भी करने हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ये काम चलता गया। ये जब आया, ये रिफॉर्मेशन जब शुरू हुआ तो बीच में ही उधर से ब्रिटिश सरकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
सर जॉन साइमन की हेडशिप में, चैंपियनशिप में एक कमीशन अपॉइंट किया कि नाउ दे विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ इंडिया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें सारे ब्रिटिश मेंबर्स थे। वो अगर कमीशन बनाना चाहते हैं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बनाओ, हमारे भले के लिए बनाना चाहिए, इफ दे आर विलिंग टू डू दैट, अगर वो सच्चे हैं तो। लेकिन कमीशन बनाने के बाद कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था, तो इससे तो पूरा जाहिर हो गया है कि ये सब दिखावा है। हमारी आज़ादी की तरफ कोई भी प्रयास है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। अगर आप हिंदुस्तान का मैटर स्टडी करना है, अगर आपको हिंदुस्तान में रिफॉर्म्स लाना है, अगर आप कमेटी बनाते हैं, ओके चेयरमैन आपके मेंबर रहते हैं, कोई बात नहीं, चलो, तो इंडियन मेंबर्स तो चाहिए ना। ये तो ऐसी वाली बात हुई कि आपका घर का डिसीजन आपका कोई बगल वाला पड़ोसी लेने लगे, ऐसे थोड़ी चलता है। आप अपने घर के मालिक हो, आपके घर का डिसीजन आप लेते हो, आप किसी का इंटरफियरेंस टॉलरेट कर सकते हो क्या? अगर कोई बगल में से आके आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे कि भाई ये नहीं, ये करने का, वो करने का, ऐसे करने का, तो क्या आप टॉलरेट करोगे? आप प्लेनली बोल दोगे कि भैया प्लीज कीप आउट ऑफ दिस, इट इज माय पर्सनल मैटर, ये मेरे घर की बात है, मैं संभालूंगा। सही बात है ना? सही बात है। तो बात को बोला, तो ये बात हमको हजम नहीं हुई। रिफॉर्मेशन इंडिया में लाना था और मेंबर्स सारे ब्रिटिश थे, और आपको तो बच्चों मालूम ही है कि वो लोग जो रिपोर्ट बनाएंगे, वो लोग जो डेटा कलेक्ट करेंगे इंडिया के वास्ते, वो कितना सही होगा आपको मालूम होगा। कई सारी ऐसी घटनाएं बनी थी जो बिल्कुल गलत डेटा प्रेजेंट किया गया था। तो ये हमारे साथ एक मजाक ही था। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो समझ गए कि ब्रिटेन हमको आज़ाद करने के लिए कुछ सोचता नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है समझ में, कि अगर वो वरना वो सच्चे दिल से आज़ादी की मुहिम रखते हैं, सोचते हैं, तो हमारे मेंबर्स कमीशन में होने चाहिए। हमने ब्रिटेन को रिक्वेस्ट भी किया कि भैया आप कमीशन बनाओ, आपके मेंबर्स के साथ हमारे इंडियन मेंबर्स को भी रखो, ताकि सच्चा डेटा मिल सके, वास्तविकता का ज्ञान हो सके। फिर भी ये कुछ नहीं हुआ, ये तो नहीं चलता। इसीलिए, ठीक इसीलिए ये साइमन कमीशन का विरोध हुआ पूरे हिंदुस्तान। जगह जगह जहां जहां भी साइमन कमीशन घुमा, लोगों ने भरपूर विरोध किया, क्योंकि ये कमीशन के नाम पे एक हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक होने जा रहा था। ये कोई आजादी की बात ही नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने वाली बात थी। इसीलिए जहां जहां साइमन कमीशन गए उधर उसका विरोध हुआ। क्यों हुआ? इसकी वजह से, क्योंकि पहले आपने बोला था कि पूरा इंडिया का जायजा लेके स्टडी करेंगे, उसमें कुछ रिफॉर्मेशन डालेंगे, और अचानक ये प्रोजेक्ट को आप कैंसिल करके अचानक कोई ब्रिटिश को बिठा देते हो, एक कमीशन का अपॉइंटमेंट कर देते हो, उसमें सारे ब्रिटिश के मेंबर्स होते हैं, इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का कोई लीडर को इंक्लूड नहीं किया है, तो ये सब क्या तमाशा है?
ये तो सब बिल्कुल जायज है, सब क्लियर है कि ब्रिटेन हमको आजाद करना नहीं चाहता था, बिल्कुल क्लियर है समझ में? सो लेट अस सी, you concentrate in this point. Montfort amendment declared that the commission should be sent to India after 10 years to examine the effects and operations of the constitutional reforms and to suggest more reforms for India. पूरा चला, 10 साल का प्रोजेक्ट था, 2 साल तक तो ये नाटक चला, लेकिन अचानक 2 साल के बाद ब्रिटेन ने उठली मारी, पलटी मारी और ये कमीशन कैंसिल किया, ये प्रोजेक्ट कैंसिल किया, उसकी जगह साइमन प्रोजेक्ट लगा दिया, साइमन कमीशन दिखा दिया। इसी तरह हमारा विरोध हुआ था, है समझ में? बट लेटर 2 years गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइमन कमीशन। देखो मैंने सब बोर्ड पे लिखा है, आप समझ सकते हो, राइट? द कमीशन consisted of Sir John Simon and other 7 members. Total how many members? 7 members with John Simon, right? कितने members थे बच्चे लोग? टोटल कितने मेंबर्स? चेयरमैन, सर जॉन साइमन, बराबर? Who is the chairman of this commission? Sir John Simon and 7 other members. 7 other members, all British, right? Not a single Indian member not a single Indian member was included in this commission. Not a single member was included in this commission. तो ये क्या बात हुई? मैंने सब बोर्ड पे लिखा है, आप देख लो। ये तो बिल्कुल स्पष्ट बन गया है कि हमारे साथ ये मजाक हो रहा था। चेयरमैन भी ब्रिटिश, अदर 7 मेंबर्स भी ब्रिटिश, स्टडी करने का इंडिया का, तो वो कैसे हो सकता है भैया? अभी मैंने आपको बोला ना कि आपका घर का डिसीजन कोई आपके पड़ोसी लेना चाहे तो आप क्या उसको अलाउ करोगे क्या? तो ये वाली बात हुई, क्योंकि हमारे घर का डिसीजन हम लेते हैं, हमारे पड़ोसी को नहीं बोलते कि भाई चलो हमारा घर का डिसीजन आप लो, हमें क्या करना है वो आप नक्की करो। And that is why it was opposed. See, this is the key words. Why Simon Commission was opposed in India? क्योंकि इसके बाद ये टॉपिक के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ। People of India opposed Simon Commission. Why? ऐसा कुछ?
British Parliament. There was not a single member as an Indian member. India recommended inclusion of Indian members in the commission so they can undertake the problems and pains of Indian society. हमने पहले उसको रिक्वेस्ट भी किया कि भाई हमारा रिपोर्ट बनता है तो हमारे को इंक्लूड करो, तो ताकि हम हमारा पेन्स प्रॉब्लम्स हमारी डिमांड हम रख सकें और आप उसको वेरीफाई करो, आप उसको सॉल्व करो। फिर भी सरकार ने मना कर दिया। Pains and problems of Indian society, but British rejected this recommendation. वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं थे, मना कर दिया कि भाई ये नहीं हो सकता, ये हमने कमीशन बिठाया है, उसमें हमारे चेयरमैन होंगे और 7 हमारे मेंबर्स होंगे, आपका कोई मेंबर ही नहीं होगा। बात बिगड़ गई। So the Indians decided to oppose Simon Commission. हमको पूरा गेम समझ में आ गया कि ये कोई आजादी वाली बात है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमको एक झांसा देने की बात है, एक आश्वासन देने की बात है कि देखो हम आपकी आजादी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था, उसका मन साफ नहीं था। अगर मन साफ होता तो ये नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, आप किसी से भी पूछ लो, है समझ में। So people of India opposed Simon Commission. Simon Commission was greeted with strikes. Assembly मतलब सभा, नेता लोग जो सभा करते हैं ऐसे, उस वक्त पे बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, प्रोसेशंस, जुलूस निकलते थे ब्लैक कलर के फ्लैग लेके। ब्लैक कलर के फ्लैग में व्हाइट पेज पे लिखा होता है साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। जहां जहां कमीशन गया, उस वक्त के जो बड़े सिटी थे, लाहौर है, कलकत्ता है, कराची है, दिल्ली है, बराबर, क्योंकि उस वक्त तो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा कुछ था ही नहीं, ढाका है, जहां जहां एक कमीशन गया उधर हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों ने जम के उसका विरोध किया, क्योंकि ये सब दिखावा था, नाटक था, दूसरा कुछ नहीं। है समझ में। Simon Commission was greeted with strikes, assembly, processions, loud slogan. Simon, go back. Right? What was the slogan, believer? Right? What was the slogan? Simon, go back. Right? The commission was greeted with this slogan, Simon, go back. है समझ में? And unfurling the black flags and apparels. अगर ब्लैक झंडा नहीं था तो ब्लैक शर्ट या कुछ ऐसा कुछ ब्लैक क्लॉथ होता है वो दिखाते थे, वो लकड़ी में उसको झंडा बना के दिखाते रखते थे। ऐसा कुछ। The British government suppressed this movement mercilessly. सरकार की ओर से पुलिस फोर्स का उपयोग हुआ। जहां जहां ये जुलूसबाजी हुई, सभाएं हुई, नारेबाजी हुई, उधर लोगों को मारा गया, पीटा गया, रूथलेसली, मर्सीलेसली। है समझ में? The assistant police commissioner, superintendent, ordered lathi charge on Nanaji's procession. वैसी एक सभा जब साइमन कमीशन लाहौर गया, लाला लाजपत राय लाहौर के थे उस वक्त, तो बाकी मैंने अभी आपको बोला पाकिस्तान हिंदुस्तान था ही नहीं, तब पाकिस्तान हमारा था।
तो लाहौर में जब उसकी सभा होने वाली थी, जब कमीशन लाहौर गया स्टडी करने के लिए, तो लाहौर के बड़े लीडर कौन थे? लाला लाजपत राय। वो सिर्फ लाहौर के नहीं थे, नॉर्थ इंडिया के बड़े लीडर थे, हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर थे। तो लाला लाजपत राय की लीडरशिप में एक बड़ा सा जुलूस निकला विरोध दिखाने के लिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में उसका विरोध हो रहा था। तो लाहौर के जो असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उसने लाठीचार्ज का हुक्म दिया कि भाई मारो, देखाव करने वाले पीटो, और खूब मारपीट हुई। और इसी दौरान लाला लाजपत राय की भी पिटाई हुई। 2-3 लाठियां उसको सर में लगी, बराबर, उसको सर में लगी 2-3 लाठी। जब पिटाई होती है तो वो देखते नहीं कहाँ कौन सी लाठी कहाँ लगती है, हाथ पैर सर सब टूट जाता है। और उसका घाव इतना तेज था कि दादाजी उधर गिर गए। उस वक्त इतना मेडिकल साइंस आगे भी नहीं था, और बताया जाता है उसको हेमरेज हो गया था, क्योंकि 2-3 फटके लगे थे सर पे, इसीलिए काफी अंदर ब्लड का क्लॉटिंग हो गया। और दादाजी को मतलब बेड में रहना पड़ा, हॉस्पिटल में रहना पड़ा, और थोड़े ही समय में उसकी डेथ हुई। है समझ में? और लाला जी की डेथ का बदला भगत सिंह ने लिया था। जो आगे बढ़ेंगे, भगत सिंह, सुखदेव, क्योंकि लाला जी बहुत बड़े नेता थे। Basically, he was from Punjab province. At that time, there was no East and West Punjab. It was singular Punjab. तो लाला जी की डेथ की वजह से कई लोगों का खून खौल गया था। और वैसे ही थोड़े रेवोल्यूशनरी आइडिया वाले जो थे, यंगस्टर्स थे, उसने सोचा कि इसका तो जवाब देना ही पड़ेगा। है समझ में? उसके बाद अब भगत सिंह का पढ़ेंगे, राइट? शहादत कैसे हुई, राइट? The assistant police superintendent ordered लाठी चार्ज on Lalaji's possession. उसका जो जुलूस निकला, उस पर लाठियां बरसाई। Lala Lajpat Rai was injured seriously while taking the lead of the procession in Lahore. ये घटना कहाँ हुई थी? लाहौर। आगे लाला जी चल रहे थे और ये माजरा हुआ। Few months later he passed away. मैंने आपको बोला ना, उस वक्त इतनी दवाइयां नहीं थी, मेडिकल साइंस नहीं था आगे। उसको ब्रेन हेमरेज हो गया था, क्योंकि 2-3 लाठी के घातक फटके उसके सर पे लगे थे, इसीलिए उसको हेमरेज हो गया। थोड़े समय तक वो बेड में रहे, फिर वो चले गए, मतलब चल बसे, शहीद हो गए, राइट? Few months later he passed away. The news of Lalaji's death instigated means uksaya Veer Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, therefore they killed General Saunders. लाला जी के ऊपर लाठी चार्ज करने वाला अधिकारी कौन था? जनरल सॉन्डर्स, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था लाहौर में, और उसके ऑर्डर से लाला जी पे लाठी चार्ज हुए थे। और ये लोग ने जनरल सॉन्डर्स की हत्या कर दी। और उसके बाद क्या हुआ सबको मालूम है, रस्ते से फांसी चढ़ गए थे, राइट? क्योंकि जितना हम लाला जी को याद करते हैं, उतना ही हम भगत सिंह को याद करते हैं। ऐसा। So this was the concept of Simon Commission. So we did not accept Simon Commission. ये तमाशा बंद हो गया। Now British government challenged us कि चलो हम गलत है, हमारा कमीशन गलत है, तो आप बताओ हमको
ड्राफ्ट करो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इक्वालिटी के हिसाब से क्या हिंदुस्तान में होना चाहिए, कौन सी चीजें होनी चाहिए. We accepted this challenge and our freedom fighters of that time, right? Shri Motilal Nehru and other people, right, accept this challenge and started to draft our first so-called constitution, and that was called Nehru Report. पूरा रिपोर्ट बनाया कि ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए, ऐसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ऐसे कायदे कानून होना चाहिए. ब्रिटिश सरकार को सबमिट किया और हर वक्त की तरह हमको मालूम था क्या होने वाला है. वो रिपोर्ट में से इतनी खामियां निकाली, वो खामियां ही ढूंढते थे ना. एप्रिसिएशन कहाँ था, अच्छाई वो लोग अच्छाई उसको दिखती नहीं थी, सिर्फ खामियां ही निकाल लगा, ये है वो है, ऐसे 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 नहीं करते, वो करते, सीधे सब पानेबाजी थी. और इसके तहत जो हमने रिपोर्ट बनाया था, सबमिट किया था सरकार को, वो हमारा रिपोर्ट उसने रिजेक्ट कर दिया, छत पे चला दिया कि चलो ये नहीं चलता, ये तो बिल्कुल बकवास है. बाकी बढ़िया सा रिपोर्ट नेहरू कमेटी ने बनाया था, जिसको हम हिस्ट्री में बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट. दैट इज माय नेक्स्ट टॉपिक. पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया बच्चों? नाउ विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक. ओके, नेहरू कमेटी report prepared by Motilal Nehru, accepted a challenge from government after rejecting Simon Commission report. After rejecting Simon Commission report, तो ये उसका बेस है, ये उसका बेस है. With the opposition of Simon Commission, हिंदी वजीर ब्यूकरहैम, राइट, वजीर मतलब बोलते हैं उसको प्राइम मिनिस्टर. Buchanan presented a draft of the constitution as a Simon Commission in which it
It stated that the Indian leaders of all parties formulate appropriate constitution which the British government will think further upon. आप हमको रिपोर्ट बनाओ, अगर हमारा रिपोर्ट आपको अच्छा नहीं लगता आप हमारे को रिपोर्ट बना दो, हम उस पर विचार करेंगे, बराबर है। तो ये हमको चैलेंज दिया था। By undertaking the challenge of this report, National General Assembly President drafted Nehru Committee report। जो कांग्रेस की जो नेशनल जनरल असेंबली की जो कोर कमेटी थी उसमें जो फ्रीडम फाइटर्स थे, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, a report was prepared and it was submitted to British government. So as it was prepared under the leadership of Motilal Nehru, it is called Nehru report or Nehru committee। आया समझ में? Okay। This report, which was given to the government, was called Nehru report, which status, the dominion status, independent judiciary system, fundamental rights, and adult suffrage, means right of voting। तो आप सोचो कितनी बढ़िया रिपोर्ट बनाई होगी, फिर भी सरकार ने हमको रिजेक्ट कर दिया। तो इससे तो बिल्कुल साफ हो गया ना कि सरकार हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान आजाद हो जाए, वो नहीं चाहते थे कि हम हिंदुस्तान में से चले जाए। ऐसा समझ। Eventually, the British government rejected the recommendation of this report। ठीक वैसे हुआ जो होना चाहिए था, तो ये था नेहरू रिपोर्ट। सो इसके बाद हमको सरकार पे से पूरा भरोसा टूट चुका था कि हम समझ चुके थे कि भाई ये सरकार टाइम पास कर रही है, बाकी कुछ नहीं है, बराबर है। वो आजादी की बात ही नहीं कर रही है, तो काहे को हम जैसे उसको वो बोले वो करें। तो इसलिए हमने वो प्रण रखा, डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। राइट, टॉपिक क्या है? डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डिमांड फॉर कंप्लीट independence। Demand for complete independence, right? Banks of River Ravi, लाहौर, ये सब कीवर्ड्स है बेटा, आप सुन लो, इसलिए मैं आपको लिख के बताता हूं। जवाहरलाल नेहरू अंडर लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ये कौन सी मुकर्रर हुई थी? 26 जनवरी 1930। ये सारे कीवर्ड्स हैं आपका, बराबर है? डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो आगे बढ़ते हैं। सरकार में से हमारा भरोसा टूट चुका था, हम समझ चुके थे कि सरकार कोई काम की नहीं है, सिर्फ झांसा ही देती है, इसलिए हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड रखा। देखते हैं। During the National Assembly of Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose were active leaders. They were propagators of complete independence. Right? Youth of India was not happy with dominion status. Dominion status means British सरकार। वो कतई राजी नहीं थे कि हमारे पे विदेशी ताकत का रूल हो, कब्जा हो। उस वक्त तो सुभाष चंद्र बोस भी पॉलिटिक्स में आ गए थे। Right? So on the bank of River Ravi in Lahore, under the leadership of Jawaharlal Nehru,
The National General Assembly passed a resolution of complete independence, demand of complete independence, right? After that, on 26 January 1930, right, the members took the oath of complete independence. Since then, 26 January became memorable as our first Independence Day. लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि उस दिन हमको आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन वो हमारा पहला आज़ादी का दिन था। इसीलिए उसको मेमोरेबल बनाने के लिए आज़ादी के बाद जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया तो 26 जनवरी को हमने क्या बना दिया, हमारा रिपब्लिक डे बनाया। तो हमारे दो नेशनल फेस्टिवल्स है, आपको मालूम है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो ये 26 जनवरी का इतिहास है, हमारा पहला आजादी का दिन था 1930 का, राइट? सो दिस इज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। Independent India made this Republic Day memorable by implementing Constitution on this day. So, this is a story of 3 topics today. Number 1, Simon Commission. Number 2, Nehru Report. And third topic, complete independence topic. So, with this, we are ending this lecture. Okay, children? Now it is your time to take your homework. Come on, take down your homework, children. Homework. GR number 1. Excuse me. People of India oppose Simon Commission. People of India oppose Simon Commission. Number 2, demand of complete independence arose in India. Demand of complete independence arose in India. Third, write in brief about Nehru Report. Write in brief about Nehru Report. So ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1, पीपल ऑफ इंडिया अपोज साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 2, डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस अरोज। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन नेहरू रिपोर्ट। तो इसके तहत हम 3 टॉपिक पूरा करके हम नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 2 में हम चौथा टॉपिक लेने वाले हैं। टिल देन चिल्ड्रन, take care, goodbye, see you in next lecture.